वेलकम टू द अनसंग हीरो सीजन 2। जैसे हर व्हीकल्स के दो व्हील्स होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ के दो व्हील्स हैं, मम्मी और पापा। दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। अगर मम्मा स्ट्रगल करती है, अपनी नींद उड़ाती है अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, तो फादर भी अपने इक्वल इतने ही टेंशन्स कैरी करते हैं, जबकि वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सके, एज वेल एज उनको अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर दे सके। वी हैव निकेन पटेल with us. He is a owner of Niken Academy since 2010. He believes in providing knowledge beyond textbooks and रट्टा मार पॉलिसी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. So he is always ready to give a practical knowledge to his children, and he has teaching experience of about 16 years. So welcome, sir. Thank you. Thank you, Shruti Madam, for inviting me. Uh, My thank you, pleasure, sir. See the Power community who selected me for this uh, Father's Day event. Our pleasure, sir. So, what different role you as a father need to play when it comes to the growth of your daughter? Play a role as an educator, as a protector of her daughter, sometimes as a friend. So father play multiple role for the development of her daughter. Let me explain uh, how father perform protector role. I personally feel whenever I am with my daughter, she feel confidence, stability, security. So father is the person who provide confidence, stability, security to her daughter. As an educator, is uh, the main role of father to introduce her daughter to the world, and uh, father is the person who can teach moral, ethics, or of the uh, principles to the children. And I also act as an entertainer. Sometimes I perform. I used to dance with them, even if I didn't like to dance. Sometimes we sing a lot. So, father is the person who can perform various roles as an uh, as an educator, as a trainer, as a counselor. Father perform different role. Even I can say father can perform a role of partner also. Right. क्योंकि जब रिलेशन बिटवीन husband and wife, if a person is very good behaving or very good performing to his family, then daughter or children, they are the observer of the role which we are performing in our day-to-day life. Right. And daughter daughter is the one who can see the man and woman who perform both together to make harmony and unity in the family. So Right. I think this is the best role as a partner to the growth of a daughter or a children in their life. So father is the person who can perform different roles. करेक्टली सेड सर कि हम जो करते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं, हमें फॉलो करते हैं. अगर हम हमारी हारमोनी उनको दिखाएंगे, अगर हम उनको इतना प्रेम घर में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली बच्चे वही सीखेंगे और उसी को फॉलो करेंगे. एंड इट्स वेरी क्यूट ऑन योर पार्ट कि यू आप डांस भी करते हैं, इंस्टेड आपको नहीं आता है फिर भी. सो इट्स अ फन ऑफ द फादरहुड, राइट?
यस, जो हमारा बचपन था वही हम अपने बच्चों के साथ फिर से एंजॉय कर सकते हैं। राइट, इंस्टेड कि हम ये कंप्लेन करें कि हमारे बच्चे हमारे जैसे नहीं हैं या हम जो करते थे वो नहीं कर रहे, अगर हम उनके साथ वो चीज़ करें और हमें वो चीज़ उनको सिखाए तो डेफिनेटली वो चीज़ वो हमसे सीख भी सकते हैं जो हमारे बचपन में हमने किया है। सर, एज अ हुँ, सर, यस, एज अ डेफिनिटली। एकेडमिशियन, आप ये जानते ही हैं कि यू नो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इवन इन द एजुकेशन। पर फिर भी एज अ फादर या एज अ पेरेंट आप क्या सोचते हैं और बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे मिनिमम करवाए? बिकॉज वी कैन जस्ट मिनिमाइज द थिंग्स, we cannot stop them to use the technology as it is a part of life nowadays, right? हम एज़ अ पेरेंट हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, और ये आपने अच्छी बात कही, हम रोक नहीं सकते उसको। अगर Right. रोका तो उनका ग्रोथ भी रुक सकता है। तो हम हैं जो डिसाइड करेंगे कि वो क्या अ, देखेंगे। लाइक यूट्यूब पे हमें क्या दिखाना है, तो यूट्यूब किड्स उसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन है। तो वी एज़ एन पेरेंट हमें अ, वो टाइम पे एकदम बोले तो क्या एक अ, हमारा डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ अलग ट्रैक पे नहीं चला जाए। तो स्क्रीन टाइम हम टोटली रोक नहीं सकते, बट स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, उसमें क्या वो लर्न करेंगे, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। मैं पर्सनली बात करूँ तो जब मेरी बच्ची का मैंने नर्सरी में एडमिशन लिया था, तब से लॉकडाउन हुआ और उसकी जो नर्सरी की स्कूलिंग थी, वो ऑनलाइन हुई। तो Right. उससे पहले वो खाने के टाइम पे या फिर हमारे घर में टीवी है पर चलता ही नहीं था। खाली आईपीएल मैच के लिए हमारे घर पे टीवी रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था। बट आफ्टर दैट कोरोना पीरियड, जैसे उन लोग की ऑनलाइन स्कूल हुई, तो वो लोग धीरे-धीरे स्क्रीन टाइम उनके बढ़ता बढ़ता गया और फिर वो लोग टीवी भी देखते लगे। तो आज हमने आफ्टर कोरोना हमने डिसाइड किया कि टीवी में कितना स्लॉट हमें बच्चों को दिखाना है, कौन-सी चैनल हमें ट्यून करनी है। राइट, इट इज थोड़ा बहुत हमारा कंट्रोल ये भी होना चाहिए एज अ पेरेंट्स, हम उन्हें रोक नहीं सकते। आज एंटरटेनमेंट के लिए भी टेलीविजन और मोबाइल्स है, पर उसको हम डेफिनेटली एज यू सेड सर कि मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं। और सो सर, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हाँ जैसे जी। हम कहीं पे घूमने गए और जैसे हमारे बच्चों को ये आदत नहीं थी कि फ़ोन देख के खाना खाएँ। पर हम जब घूमने जाते हैं या फिर अ कोई बार ऐसा हुआ कि बच्चों को हॉस्पिटलाइज़ किया गया है, उस टाइम पे जो हमारे एल्डर्स हैं, उनकी केयर लेते समय उनको फ़ोन हाथ में दे देते हैं। तो ये होता ही है, हर एक के साथ ये हुआ ही है कि बच्चों को धीरे-धीरे फ़ोन की आदत वहाँ से लग गई है। तो जब वो नॉर्मल रूटीन पे आते हैं, तब उनको धीरे-धीरे कैसे वो स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है और अपने फिर से वो ट्रैक पे आना है, वो पेरेंट का रोल है, वो अपने आप खुद हम डिसाइड कर सकते हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम पेरेंट्स स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं। को काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, तो उनको मोबाइल देके साइड पे रख दिया कि भाई वो अपना काम तो कर रहा है, अपना काम हम कर रहे हैं। तो राइट। हमें प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए अपने बच्चे को, और इस पे कंट्रोल अल्टीमेटली तो हम ही सेट कर पाएँगे। राइट, राइट सर। सर, बीइंग अ वर्किंग पेरेंट्स, आप दोनों वर्किंग हो, तो यस। उसकी अपने बच्चों पे इफ़ेक्ट कैसे आती है? और आप मम्मा-पापा दोनों बाहर हैं और उसके बाद एज़ अ फादर आप कैसे, आपका क्या रोल होता है? बिकॉज़ मम्मा वो भी तो बाहर से आती है, थक के आती है, राइट? हुँ। अ, मैं ये समझता हूँ कि जब हम वर्किंग पेरेंट हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है राइट, कि बच्चे अर्ली स्टेज की टाइम की वैल्यू क्या है। दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम इन अर्ली स्टेज। जैसे हम नहीं हैं, तो वो अपने आप डिसीजन ले रहे हैं।
तो हम वो अलाउ कर रहे हैं कि वो डिसीजन ले, और उसका एंड रिजल्ट, आउटकम अगर नेगेटिव भी है ना, तो बच्चे उसमें से कुछ ना कुछ सीख तो लेते हैं। हम सीखेंगे। उसे उसे ये समझाते कि एटलीस्ट डिसीजन तो तेरा खुद का है। और मान लो कि राइट। जब आउट उसके आउटकम पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने देखा है उनके कॉन्फिडेंस पे उसकी सीधी असर। बढ़ता है। राइट। हाँ। सो बीइंग अ वर्किंग पेरेंट, अपने बच्चों को मैंने ये देखा है कि दे आर टेकिंग देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, और हम वो राइट। अलाउ करते हैं उनको। उसका जो भी एंड रिजल्ट है, हम उसमें उसके साथ उनके साथ ही रहते हैं। हम कोई भी दिन उनको ऐसा नहीं बोलता कि ये टाइम पे ये करना था, ये क्यों किया। और एज अ पेरेंट जो पास है, उससे सीखना चाहिए, और बच्चे को भी सिखाना चाहिए कि अगर ये डिसीजन हम लेते तो उसकी ये आउटकम हो पाते। सो मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि वर्किंग पेरेंट होने से मेरे बच्चों में तो प्लस पॉइंट है कि वो अपने आप से डिसीजन ले रहा है, और हम अलाउ करते हैं वो खुद। वो डिसीजन उनके रॉन्ग भी हो तो हम उनको डांटते हैं। सर एज यू सेड कि अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा दोनों काम कर रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा बहुत तो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं। अगर हम उनके डिसीजन में थोड़ा रोक हम्म, टोक करें तो हो सकता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे, या चीज वो चीज़ हमें बताए ना। ये चीज़ भी एक हो सकती है। हम्म, पर अगर हम उनके सारे डिसीजन को वेलकम करें, सुने एक बार, भले उनको हम बाद में समझा लें, पर एक बार उनके डिसीजन को अगर वेलकम करें तो बच्चे, they can easily share with you the things instead of hiding anything, right? एज अ फ्रेंड, जब बच्चे, जब किड्स, जब एडल्ट हो जाएंगे, तो जब किड्स है तभी उनके साथ एक फ्रेंडशिप और फ्रेंड जैसा रिलेशन हो। तो जब वो एडल्ट होंगे तब कुछ चीज हमसे छुपाएंगे नहीं, और जो Right. कुछ गलत करेंगे तो उससे पहले हमें बताएंगे कि ये क्या है। उनमें वो सेंस आ ही जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है, अगर हम उसको, हम पेरेंट एज अ फ्रेंड उसके साथ पहले से रहे। एक ट्रस्ट बन जाता है सर, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। सर, एज यू आर अ सो फादर ऑफ अ फादर इज गर्ल। द पर्सन हु कैन, so father is the person who can perform the role of friend also. या sir, as a, as a father of a girl child as well as a boy, तो व्हाट डू यू थिंक कि इन दोनों के ग्रोन अप में कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? हम्म, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो गर्ल और बॉय, मतलब उसमें नहीं होगा, बट इट मे हैपन दैट सर्कमस्टेंसेस क्या है, कि राइट। परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। हम उस हिसाब से डिसीजन नहीं लेते कि मेरा ये बच्चे के लिए मैं करूं, मेरी बच्ची के लिए नहीं करूं। वो एक जमाना था, बच्ची को नहीं पढ़ाते थे क्योंकि वो दूसरी घर जाने वाली है, वो हमें कमाई देके नहीं जाएगी। वो पुरानी सोच है। आज सब कोई वो मेंटालिटी अपने आप से निकाल चुका है। और अब देखो, मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ हमारे क्लासेस में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है लड़कों से, और लड़कियां ज्यादा मार्क लाती है। ऐसा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लड़कियां समझ रही है ज्यादा अहमियत के पापा कैसे काम करते हैं, बराबर, हमें कैसे अपना करियर बनाना है। एक जमाना था कि भाई अच्छे घर का लड़का है, पैसे वाला है, शादी करवा दिया। अब पेरेंट्स भी समझते हैं ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास हो तो भी चलेगा, पर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। आज का एजुकेशन, आज एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। एजुकेशन एक राइट। डिग्री और सर्टिफिकेट के फॉर्म में हमें मिल जाती है, लेकिन हम अगर स्किल डेवलप नहीं करेंगे, हमारी वैल्यू हम बढ़ाएंगे नहीं, हम अपने, ये जमाना है उस हिसाब से हम अपने स्किल को एनहांस नहीं करेंगे, तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसा ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन मुझे नहीं लगता कि बच्चों के ग्रोथ में लड़के लड़की में कुछ डिफरेंस हो। हमारे लिए तो दोनों ही इक्वल है, बट मैटर ऑफ टाइम है कि वो टाइम पे क्या था, आज के टाइम में क्या है।
Right, right. Sir, what do you want to give a message to the society as a father? यस, एज अ फादर मैं ये कहना चाहता हूँ सोसाइटी को कि हमने बहुत सारी फिल्म देख ली, देखी है, अगर आमिर खान की तारे जमीन पर भी देखी है, बट बात जब अपने बच्चे की डिसीजन पे आती है, मतलब कि करियर के बारे में आती है, तो जो पेरेंट्स होते हैं, मैंने काफी बार देखा बच्चों को खुद को क्या करना है और पेरेंट्स को उसको क्या बनाना है। तो मैं बोलता हूँ कि बच्चे आपकी कोई लॉटरी की टिकट नहीं है जो आपको इनाम देंगे। आपको उसको जो करना है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो स्किल है, उस हिसाब से करियर सिलेक्ट करना चाहिए और उनको डिसीजन लेने दो। अगर वो गलत भी होंगे तो उसमें से कुछ सीखेंगे। मैं बोलता हूँ गिरेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। गिरना अच्छी Right. बात है। गिर के वहां पर ही रहना वो बुरी बात है। गिर वो के गलत कुछ बात है। सीखो। हाँ, गिर के कुछ सीखो और सीख के आगे बढ़ो। गिर के आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। हमने सीख लिया कि वो नहीं करना, वो राइट ट्रैक नहीं है, तो अब राइट ट्रैक पे आओ। तो वो डिसीजन अपने बच्चे को देने दो। मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑलवेज किल्स। उसके बच्चे ने सीए किया तो मेरा बच्चा भी सीए करे। अरे आज के Right, जमाने right. में 5G करियर ऑप्शन है, नए नए कोर्सेज है, फिनटेक, पेटीएम कौन सी कंपनी है, फिनटेक कम, फाइनेंस टेक्नोलॉजी का मिक्स है, बायजूस, एडटेक कंपनी, ये सभी के कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है। और हम वो 1G करियर ऑप्शन में नॉर्मल प्लेन, मैं बोलता हूँ प्लेन वेनिला टाइप बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचआरडी करते हैं। और आज का जमाने में वही वेनिला की वैल्यू तब बढ़ती है जब उसको एक ब्राउनी पे रख के दिया जाता है। Right. तो हमारे Correctly करियर में said. ऑप्शन है। यस, हमारे करियर में भी ऐसे ऑप्शंस है। वो दिमाग, अपना माइंडसेट चेंज करिए। अपने बच्चे अगर बोलते हैं कि मुझे ऐसा कुछ कोर्स करना है तो उसको वो समझो, पहले उसको अलाउ करो, जाओ अपने अपने हिसाब से, लाइक जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। तो वो Right. तब के जमाने का आज करियर में है। तो मैं पेरेंट्स को इतना कहना चाहूंगा कि अपना माइंडसेट क्या है, वो माइंडसेट थोड़ा बदलो। और जो करियर ऑप्शंस नए नए हैं उस हिसाब से, अगर जो आपके बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं तो वो समझ के उनको अलाउ करो। तो आज का जमाना स्किल बेस्ड है। अगर स्किल एनहांस नहीं की, मैं अगेन बोल रहा हूँ, स्किल एनहांस नहीं की तो Right, कोई right. ऑर्गेनाइजेशन आपको एंट्री देगा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे। पर वही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के बन गए तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको निकाल देगा। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के बनना है कि प्रॉब्लम मेकिंग नेचर का बनना है। अगर प्रॉब्लम मेकिंग नेचर के बने तो ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं रखेगा। आपका माइंड क्या है, रिसर्च माइंड है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है। 2015 तक मैं देख रहा था क्रिएटिविटी इज द लास्ट ऑप्शन इन करियर, बट आज देखो क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा है। एक Right. लड़की मेहंदी मेहंदी रखने के लिए दुबई तक जाती है आज, और Right. वो पढ़ती भी है। हमारे यहाँ पे है एक लड़की है जो पढ़ रही है, एमकॉम पढ़ रही है, और मेहंदी रखने के लिए वन 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 मंथ के लिए वो दुबई गई। तो आज स्किल बेस्ड Wow. एजुकेशन होना चाहिए। और आप कोई कैफे में चले जाओ तो नॉर्मल इंटीरियर आपको नहीं अच्छा लगता, कोई थीम बेस्ड इंटीरियर है। कोई रेस्टोरेंट में चले जाओ, कितनी बड़ी जगह वो लोग खाली सेल्फी कॉर्नर के लिए रख रहे हैं, क्योंकि वो लोग आएंगे, Right. फोटो खिंचाएंगे और व्हाट्सएप इंस्टा पे शेयर। तो ये Right. जमाना Right. बदल चुका है, करियर ऑप्शन भी बदल चुके हैं। तो बस आप अपनी सोच बदलो, मुझे बस इतना कहना है पेरेंट्स को। Sir, it is really wonderful and creative advice from your side to the society. And thank you so much for spending your special time with us. And wish you a very happy Father's Day.